सत श्री अकाल लांघे दा सफर खास प्रोग्राम लेके हाजिर हां। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ 2018 ਵਾਲੀ ਵੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਕੈਪ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 20 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, यानी कि तकरीबन 1450 रुपए। भारत ने इसका पहले दिन तो विरोध किया, पर पाकिस्तान ने कोई रियायत नहीं दी। तो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि फीस वाले मसले पे वे थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी दिखाएं। मेरा तो मनना है भी अगर करतारपुर लांघा एक संगत वास्ते खोलिया गया है तो उस ते फीस रखना कोई वाजिब गल तो नहीं है। बिल्कुल ये लेनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे जो भी इतनी कोई बड़ी अर्निंग नहीं होगी। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। 20 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ 20 ਡਾਲਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਥੂ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇहद ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2019। ਜ਼ੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, जैसे खुले दर्शन दीदार दा राह पदरा हो रहा है। वो मुकद्दस स्थान जिथे जात पात ते ऊंच नीच के खनेरे च डुबे संसार चानण दी राह विखाई गई। इस धरती तो हर कोई प्रेरणा ले सके, इसलिए चिरा दी अरदास पूरी हो रही है। बन रहा है करतारपुर साहिब लांघा। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਸੈਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। If you remember, this was in November 2018 when the decision was taken to take on this project. It was 28th November when our Honorable Prime Minister Imran Khan came and inaugurated the groundbreaking ceremony. And that was the day where we took off. We kicked off our project right from there and then. And you know, it's one of its kind, the project of its kind, where it was evolved and conceived and executed simultaneously. So we didn't have much time to think about. So we took about a month to streamline our things, and we kicked off right from the next day. And it was January we started doing the work, and you can see now it's September, about 9 months. Alhamdulillah, we have achieved 90% of the achieved target, our desired target. And because we have to complete phase 1 by 9th November, when we're going to have another inauguration inshallah before the Baba Ji's celebration, the 550th celebration. ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। Big challenges in this journey. It was like 24/7 journey, day and night journey. We brought in, this is a remote area, you know, we brought in the manpower, we brought in the number of contractors. We didn't rely on one. We did it a little unconventional, out of the box solution we brought in. We did work 24/7, day and night. There were like
torrential rains, February, March, intermittent rains during the months, and then there was like this river challenge. The bridge was a big challenge. People were like very skeptic whether we will be able to do it or not. But Alhamdulillah, it was 26 June. I precisely remember when we completed the bridge, complete bridge of about a kilometer in just 6 months, and that is. I'm happy to say that, Alhamdulillah, that's the historic record of Pakistan. No bridge has been this much long, has been constructed in 6 months. Simultaneously, the border terminal, which is the immigration terminal, and this Gurdwara complex, which expanded from 4 acre to 42 acres. So it was more than 1 million square feet construction. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं तो दिन रात यहाँ पे रह रहा हूँ, अपने भाइयों के साथ देख रहा हूँ। मैंने पहले भी मेरे भाइयों ने जब रिफ्रेशमेंट कर रहे थे कुछ सवाल किए, तो हम 24 घंटे में से 1 घंटा भी शायद इनको सोता हुआ नहीं देखते। जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने बताया, बाकी जो उनकी टीम है, ये जो बाकी लेबर है, अराउंड द क्लॉक, सुबह जब मैं इबादत के लिए आता हूँ कुछ और होता है, दोपहर को आता हूँ कुछ और होता है, शाम को आता हूँ कुछ और होता है, और अराउंड द क्लॉक यहाँ पे काम चला है। नहीं देखी इन्होंने गर्मी, नहीं देखी इन्होंने सर्दी, नहीं देखी इन्होंने बारिश। सुबह बारिश हो रही थी, जब मैंने उठ के बाहर देखा तो इनकी सारी टीम बारिशों में लगी हुई थी। तो हमारे सिख मज़हब में आता है कि सेवा का बहुत बड़ा जो है ना ऊंचा वो है मुकाम है। तो सिर्फ सेवा जो है वो पैसे से नहीं है, पैसा जो सेवा वो हर तरीके से की जा सकती है, जिस तरह पाकिस्तान की सरकार ने की है, जो यहाँ पे टीम काम कर रही है। गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के किनारे एक नगर वसाया, खेती की, नाम जपो, किरत करो ते वंड छको दा सुनेहा दिता। इन्हां खेतां नाल सिक्खां दा काफी मोह है, इस लई उसारी वेले इन्हां नूं कोई नुकसान ना पहुंचे, इस लई भावनावां नूं वेखदे होए इन्हां दा खास ध्यान रखिया गया। गुरु साहिब दी किसी भी निशानी नूं छेड़िया नहीं गया, इट नाल इट जुड़दी जा रही है ते इंतजार हो रहा है लांघे दा। ਇਹ ਤਾਂ 2019 ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਦ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ 2018 ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਦ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛਿੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਵਿਖਾਣੇ ਆ। इस टाइम असी मौजूद हाँ श्री दरबार साहब करतारपुर विच। वो जगह है जिहदा लांघा खोलण की गल की जा रही है। जी हाँ, श्री दरबार साहब जिहड़ा बिल्कुल हिंदुस्तान के बॉर्डर के करीब है। दरबार साहब तो बिल्कुल नाल दरिया रावी वगदा है, जिहड़ा कि हिंदुस्तान के विचों बहंदा होया पाकिस्तान च आंदा है और फिर अगे जिहड़ा वो चला जाता है। दरबार साहब जिस जगह ते असी इस टाइम मौजूद हाँ, इत्थों जिहड़ा लांघा खोलण की गल हो रही है, बिल्कुल सामने दरख्त जिहड़े नज़र आ रहे हैं। दरख्तां दे दूसरी तरफ जिहड़ा हिंदुस्तान का बॉर्डर है, दरम्यान दे विच पाकिस्तान की रेंजर्स जिहड़ी है उन्हां दियां चैक पोस्टां मौजूद ने। और इस दे नाल रावी ने जिहड़ा वक्त दे नाल बहंदे होया दरम्यान का हिस्सा उहदा खुश्क हो गया, तो एक नाला जिन्होंने अज नाला बई कहा जाता है वो वगदा है चंद फुट का वो चौड़ा है। उस दे दरम्यान दे विच फिर खेत आ जाते हैं और खेतों के नाल फिर अगों जिहड़ा वो दरिया वगदा पिया, उस तो अगे हिंदुस्तान का बॉर्डर है। और ऐसे जगह तो बिल्कुल सामने ही वो दर्शन पॉइंट है, डेरा बाबा नानक है, जिथे हिंदुस्तान के सिख वीर खड़े होके इस जगह के दर्शन दीदार करते हैं। असी तुहानूं उस जगह ते भी लैके चलांगे जिन्हों खोलण की गलबात हो रही है। इस टाइम लोग पैदल जाते हैं, पहले उन्होंने कश्ती
ਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲਾ ਬਈ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। दरबार साहब ते डेरा बाबा नानक के बीच का लांघा ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਦ ਫਰਲਾਂਗ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਨਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲਾ ਬਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। इस वक्त हम लोग उस नाले को जो है वो कश्ती के ज़रिए जो है वो अबूर कर रहे हैं जिसको नाला बई कहा जाता है। ये दरिया रावी का ही एक हिस्सा था जो उससे अलग हो चुका है। यहाँ पे इस वक्त कश्ती चलाने वाला जो है वो भी मौजूद नहीं है। हमें ख़ुद ही जो है इस कश्ती को चला के जो है वो अपने हाथों से इस दूसरे किनारे पर पहुँचेंगे जहाँ दरमियान में थोड़े से खेत हैं और उसके बाद फिर दरिया रावी का जो है वो दरिया रावी आ जाएगा और दरिया रावी के दूसरी तरफ जो है वो हिंदुस्तान का जो है वो बॉर्डर है। दरबार साहब से बॉर्डर तक का जो फासला है वो कुछ 4 किलोमीटर के करीब है और जिस जगह से हम गुजर के जा रहे हैं यही वो मुजवज़ा रास्ता है जिसके ऊपर जो है वो कॉरिडोर को तजवीज़ किया गया है। पाकिस्तान इससे पहले इस पर बहुत सारा काम कर भी चुका है। इसका मैप भी तैयार हो गया था, कुछ रास्ता बनाने के लिए टेंडर भी हो गए थे, लेकिन हिंदुस्तान के इनकार के बाद इस पर मज़ीद जो है वो काम जो है वो नहीं हो सका था। नाला हमने इस वक्त अबूर कर लिया है और अब हम आगे जाएंगे दरियाए रावी के पास और उसके आगे जो है वो जहाँ पर हिंदुस्तान का बॉर्डर लगता है जो ज़ीरो लाइन है वहाँ पहुँचेंगे। दरबार साहब तो सफ़र करते हुए असी दरिया रावी के किनारे पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान की तरफों चंद साल पहले ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤਵੱਕੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ। पाकिस्तान ते हिंदुस्तान के बीच करतारपुर का यह लांघा खोलन की पेशकश सुन के दुनिया भर के सिख जिहड़े ने खुशी नाल समा नहीं रहे। उन्होंने हुण इंतजार इस करता है कि पाकिस्तान की इस पेशकश का हिंदुस्तान की जवाब देंदा है। आसिफ महमूद, ABP सांझा, करतारपुर, पाकिस्तान। एक ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। जिस जगह पे उस मालिक ने अल्लाह ताला ने तुहानू ज़ियारत करने का मौका दिता कि 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज जो सिख मजहब के बानी सन वो अपनी 52 साल की जिंदगी गुजारन तो बाद 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ इस मुकाम ते पहुँचे। तो इस जगह नू पहचान देने वास्ते बाबा जी ने इस जगह नू करतारपुर साहब का नाम दिता। तो बाबा जी गुरु नानक साहब ने इस जगह नू करतारपुर साहब का नाम दे के करतारपुर साहब के नाम तो नगर बसाया, पिंड बसाया, शहर बसाया। और फिर 22 सितंबर 1539 इस ही मुकाम ते बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज दुनिया तो रुखसत होए। मुसलमान वीर कहने लगे कि बाबा जी तो साडे मुसलमान बुजुर्ग सन, साडे पीर सन, साडे वली सन, असीं इन्हां नूं अपनी अकीदत के मुताबिक दफनावांगे। दूसरे पास संगतां दा कहना सी कि असीं गुरु साहब जी का संस्कार करांगे, क्योंकि सिख मजहब दे विच डैथ तो बाद डैड बॉडी नूं डिस्पोज ऑफ जला के किया जाता है। तो इसे ही गल तो झगड़ा चलता पिया सी। जब बाबा जी गुरु नानक साहब जी नूं देखण वास्ते, उन्हां तो फैसला लैण वास्ते, उन्हां तो फैसले की बख्शिश लैण वास्ते चादर उठाई, तो चादर के थल्ले बाबा जी गुरु नानक साहब का जसदे खाकी नहीं सी, गुरु नानक साहब जी नहीं सन, फुल पे हुए सन। लड़न वाले लोग हैरान हो गए। तो फिर उस चादर नूं और फुल्लां नूं दो बराबर हिस्से डिवाइड किया गया, वंड पाई गई। तो जिहड़ी अद्धी चादर ते फुल मुसलमान वीरां नूं मिले, उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक, अपनी अकीदत के मुताबिक उन्हां नूं दफना के गुरु साहब जी की मज़ार बना दी थी, दरगाह बना दी थी। और जो अद्धी चादर ते फुल वीरां नूं मिले, उन्होंने उसनूं संस्कार करके समाधि बना दी थी। तीन खूह ने इस गुरुद्वारे के करतारपुर साहब, जिन्होंने बाबा जी गुरु नानक साहब के दस्ते मुबारक लगे हुए हैं। एक तो इस गुरुद्वारे के अंदर ही छोटी खूह है जिसनों असीं बौली साहब कहने हैं। एक बाहर खूह है, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया, उस खूह तो बाबा जी अपनी खेतों में खुद पानी दिया करते सी। उस तो इलावा एक होर खूह है, उस खूह तो जोड़े उस टाइम में बाबा जी के लोग, बाबा जी के ज़ायरीन बाबा जी के दर्शनों वास्ते आते सन, बाबा जी के ज़ियारतों वास्ते आते सन। तो फिर उस खूह तो बाबा जी इस गुरुद्वारे का तबरक समझ के पानी लोग लैके जाते होंगे सन, जिहड़ा हुण सानूं अज तो 2-3 साल पहले डिस्कवर होया जी। ने 1947 तो बाद जब दोनों मुल्कों की वंड पई
47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ 53 ਸਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 53 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।